بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے حصہ اول پڑھا تھا۔ آج ہم حصہ دوم پڑھیں گے اور حصہ دوم کا پہلا سبق ہے علم صرف۔ علم صرف کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ علم صرف کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور میں اپنی بات کو دوہرا لوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی وہ بات تازی ہو جائے۔ علم صرف کہتے ہیں اس علم کو جس میں لفظوں کی ساخت اور بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کتب، عربی میں اس کا معنی ہوگا اس نے لکھا۔ اگر اسی کتب کے شروع میں یہ لگا دیجئے تو ہو جائے گا یکتب، اس کا معنی ہو جائے گا وہ لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ ہم نے کیا بڑھا دیا کتب کے شروع میں؟ یہ۔ اگر اس کے شروع میں ہم میم بڑھا دیے مثال کے طور پر مکتوبن، تو اس کا معنی ہو جائے گا لکھا ہوا۔ آپ اسی کو اپنی زبان میں سمجھیے۔ میں کہوں اس نے کھایا، اس نے کھایا، یا وہ کھا رہا ہے یا وہ کھائے گا، تو لفظوں کی حروفوں کو بڑھانے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اسی کو علم صرف کہتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کی ساخت اور بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے۔ تو جو غور کرنے والی بات ہے وہ اس میں ہے لفظ۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کی بناوٹ اور ساخت سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اب آپ لفظ پر غور کیجیے اور پہلے یہ سمجھیے کہ لفظ ہوتا کیا ہے۔ لفظ ہوتا کیا ہے؟ تو ہمارے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ہمارے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلنے والی بولی جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور ایک ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ حیدر سر پانی وانی دیجیے، حیدر سر پانی وانی دیجیے، یا احان بابو پانی وانی لائیے، تو میرے منہ سے جو بولی نکلی ہے جس کو لفظ کہا جاتا ہے، تو میں نے استعمال کیا کہ پانی وانی دیجیے، تو لفظ پانی یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے وانی جو کہا وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ ہمارے منہ سے جو بولی نکل رہی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے منہ سے نکلنے والی جو بولی ہے اس کا کوئی معنی ہے تو اس کا نام موضوع ہو جائے گا۔ معنی دار لفظ کا نام کیا ہو جائے گا؟ موضوع۔ جیسے روٹی، پانی، جو لفظ ہمارے منہ سے نکلے اگر اس کا کوئی معنی ہے تو اس کو موضوع کہیں گے۔ اور بے معنی لفظ جس سے کچھ سمجھ میں نہ آئے، جیسے پانی کے بعد وانی، تو وانی سے آپ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں۔ تو جو لفظ ہمارے منہ سے نکلے اور اس کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ پھر آگے آئیے، ہمارے منہ سے جو بولی نکلی ہے جس کا کوئی معنی ہے، یا تو وہ اکیلے ہوگا یا دو لفظوں سے مل کر پھر بنا ہوگا۔ مثال کے طور پر مکان، گھر، یہ الگ ایک لفظ ہے۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو اکیلے ہے جیسے مکان، تو اس کو کہیں گے مفرد۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد۔ اگرچہ معنی دے رہا ہے، اکیلا ہے، تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ مفرد۔
लेकिन दो लफ्जों को जोड़कर बनाया गया हो, जैसे कुतुब खाना। तो कुतुब अलग लफ्ज है और खाना अलग लफ्ज है। कुतुब को हमने जोड़ दिया खाना में, तो अब क्या हो गया, कुतुब खाना, किताब का घर। तो ये लफ्ज़े मुरक्कब हो गया। आगे सुनिए, जिस लफ्ज का कोई माना होता है, जिस लफ्ज का कोई माना होता है, जैसे पानी, पान, है ना, चावल, दाल, सब्जी, जो ले लीजिए, मछली, गोश्त, मुर्गा, आपको जो कहना कह लीजिए, जिसका कोई माना होगा ना, उसको क्या कहेंगे, मौजू। मौजू का दूसरा नाम इल्म सर्फ में है कलमा। मौजू का दूसरा नाम है इल्म सर्फ में कलमा। फिर कलमे के 3 खानदान आ जाते हैं। एक खानदान का नाम है इस्म, दूसरे का नाम है फेल, और तीसरे का नाम है हर्फ, जिसको आप लोग नाउन बोलते हैं और फेल को पता नहीं क्या बोलते हैं ना। तो लफ्ज़े मौजू का जो दूसरा नाम है इल्म सर्फ में, उसको कलमा कहते हैं। फिर कलमा की 3 किस्में हो जाती है, एक है इस्म, एक है फेल और एक है हर्फ। नंबर 1, इस्म पर आ जाइए। इस्म किसको कहेंगे, किसी चीज़ के नाम को। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का नाम है हामिद या साबिर, तो ये इस्म कहलाएगा। किसी चीज़ के नाम को, चाहे वो आदमी का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, या किसी पेड़ पौधे का नाम हो, किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहेंगे। बात खत्म हो गई। दूसरी किस्म है फेल। आसान लफ्ज़ में समझिए, फेल काम को कहते हैं। कोई भी काम हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना ये काम हो गया, मैं खा रहा हूँ तो मैं फाइल हो गया, और जिसको खा रहा हूँ वो मफूल हो गया। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, किसी भी काम करने को है ना, फेल कहते हैं इल्म सर्फ में, और अरबी में भी शायद के फेल ही कहते हैं। बहरे कह, जिसके अंदर है ना काम करने का माना पाया जाए, उसको फेल कहते हैं। जिसको आप लोग कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। काम जो होगा वो 3 तरीके से होगा, या तो पहले हो चुका होगा, या हो रहा है, या आने वाले ज़माने में होगा, उसी को उर्दू में फेल कहते हैं। तो 2 चीज़ समझ में आ गई। इस्म किसी चीज़ के नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं, चाहे वो काम हो चुका है, या हो रहा है, या होगा। आगे आ जाइए हर्फ। हर्फ उसको कहते हैं जो अपना माना बताने में किसी इस्म फेल का मोहताज हो, अकेले अपना माना न बता सके। मिसाल के तौर पर है ना, की है, तो आपको क्या समझ में आया, कुछ नहीं। और मैं कहूँ कि कुर्सी पर, तो समझ में बात आ गई। हो सकता है कुर्सी पर कोई चीज़ हो, अगर चाहिए जुमला क्या कहते हैं नाकिस है, लेकिन कुर्सी पर, है ना। तो पर जो है लफ्ज़े पर, ये जोड़ने का काम करता है ना, रब्त का काम करता है। एक मरतबा और सुन लीजिए, उसके बाद बोर्ड पर पढ़ लीजिए। इल्म सर्फ उस इल्म को कहते हैं जिसमें लफ्ज़ों की बनावट से बहस की जाती है। अब आ जाइए लफ्ज़ पर। लफ्ज़ क्या है, हमारे मुंह से जो बोली निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ 2 किस्म के हुआ करते हैं। नंबर 1, या तो उसका कोई माना होगा या उसका माना नहीं होगा। अगर माना होगा तो उसका नाम मौजू होगा, और अगर माना न होगा तो उसका नाम मुहमल होगा। अब आ जाइए फिर पहली तरफ। अगर माना होगा तो वो लफ्ज़ 2 तरीके का होगा, या तो अकेले होगा या एक से ज़्यादा होगा। अगर अकेले होगा तो उसको मुफरद कहेंगे, और एक से ज़्यादा होगा तो उसे मुरक्कब कहेंगे। फिर आगे लफ्ज़े मौजू को दूसरा नाम जो दिया गया है वो कलमा है, और कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म कहते हैं नाम को, फेल कहते हैं काम को, और हर्फ कहते हैं जो अपना माना बताने में दूसरे का मोहताज हो। उम्मीद है कि कुछ न कुछ बात समझ में आ गई होगी, इस पर देख लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्सा 2 इल्म सर्फ, सबक नंबर 1।
लफ्ज और उसकी किस्में। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्जों की साख्त और बनावट से बहस की जाती है। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्जों, ये गौर करने की बात है, लफ्जों की साख्त और बनावट से बहस की जाती है। मिसाल के तौर पर काफ है, ते है, बे है, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो इसका माना हो जाएगा उसने लिखा, कतब उसने लिखा। और हमने फिल मुजारे का माना पैदा करने के लिए क्या कहते हैं, ये दाखिल कर दिया यक्तुबु, तो इसका माना हो जाएगा क्या कहते हैं, वो लिखता है या लिखेगा या लिख रहा है ना। तो इसके शुरू में जैसे ही हमने ये बढ़ाया है ना, इसका माना बदल कर दूसरा हो गया है ना। इसी तरीके से आप लफ्ज को घटाते बढ़ते रहेंगे और माना में तब्दीली होती चली जाएगी। इसी को इल्म सर्फ कहते हैं। अब ऊपर देखिए, लफ्ज से बहस की जाती है। इल्म सर्फ में किससे बहस की जाती है? लफ्ज से। अब इस लफ्ज को हम यहाँ लाते हैं, लफ्ज और उसकी किस्में। सबसे पहले समझिए कि लफ्ज है क्या। लफ्ज है क्या? तो इंसान के मुंह से जो बोली निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से, हमारे आपके मुंह से जो बोली निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज कितनी किस्म के हैं? 2 किस्म के हैं। कैसे? माना के एतबार से। माना के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 मौजू, जिसका कोई माना होगा। नंबर 2 मुहमल, जिसका कोई माना नहीं होगा। जैसे पानी, बात समझ में आ गई? पानी। वानी, कुछ समझ में नहीं आया तो लफ्जे वानी ये मुहमल है जिसका कोई माना नहीं है। अगर माना हो तो उसे लफ्जे मौजू कहेंगे। और जैसे पानी, अगर माना न हो तो उसे लफ्जे मुहमल कहेंगे, जैसे वानी। उम्मीद है कि यह भी बात समझ में आ गई। फिर लफ्जे मौजू की 2 किस्में हैं। लफ्जे मौजू की 2 किस्में हैं। यहां से लफ्ज आपने उठाकर यहां लाया, लफ्ज की तारीफ आपने सुन ली। फिर अब आप सुनिए, लफ्ज मौजू की 2 किस्में हैं। कैसे? मुफरद या मुरक्कब। आपने पहले भी पढ़ा था कि मुफरद अकेले को कहते हैं और मुरक्कब मिले हुए को कहते हैं। जैसे आपने हुरूफ तहजी में पढ़ा था उर्दू कवायद में कि हुरूफ तहजी की तादाद 53 है। मिसाल के तौर पर बताया गया था कि हुरूफ तहजी जो है वो 2 किस्में के हैं, मुफरद और मुरक्कब। हमने बताया था कि अगर सिर्फ बे है, सिर्फ ये बे है तो ये मुफरद है। अगर बे में हमने 2 चश्मी हे जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? बे में है लगा भे, तो ये लफ्जे मुरक्कब हो गया। तो बात समझ में आ गई। अगर अकेले है तो मुफरद और उसके साथ कोई जुड़ गया तो मुरक्कब। तो वही बता रहा है कि लफ्जे मौजू की है ना 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। अगर अकेला लफ्ज है तो मुफरद, जैसे मकान, और अकेला नहीं है, 2 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है तो मुरक्कब। जैसे कुतुब में हमने जोड़ा खाना को, बराबर क्या हो गया? कुतुब खाना, किताब घर। अब आइए आगे। फिर लफ्ज मौजू का दूसरा नाम जो है वो कलमा है। दूसरा नाम क्या है? वो कलमा है। और फिर कलमे की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ। इस्म नाम को कहते हैं, वो किसी चीज का भी नाम हो सकता है। नाम की आगे आप किस्में पढ़ेंगे कि नाम कई किस्म के होते हैं। फेल काम को कहते हैं, वो काम कैसा भी हो सकता है, या तो हो चुका होगा या हो रहा है या होगा, है ना। हर्फ जो अपना माना अदा करने में किसी दूसरे का मोहताज हो, जैसे पर, की वगैरह, है ना। यही आज का सबक है, बिल्कुल आसान है। एक मर्तबा और सुन लीजिए और बात जहन में आ जाएगी। इल्म सर्फ उस इल्म को कहते हैं जिसमें लफ्जों की साख्त और बनावट से बहस की जाती है। लफ्ज क्या है? हमारे मुंह से जो बोली निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज 2 किस्म के हुआ करते हैं, या तो उसका माना होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है तो मुहमल, अगर माना है
تو मौजू, फिर मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब, है ना। अकेला है तो मुफरद और अकेले से ज़्यादा है तो मुरक्कब, है ना। फिर लफ्ज़ मौजू का दूसरा नाम जो है वो कलमा है, और कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म काम को कहते हैं, फ़ेल इस्म नाम को कहते हैं, फ़ेल काम को कहते हैं, और हर्फ कहते हैं जो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मोहताज हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।